Hello everyone, welcome to College Dekho. In this concept video, I am going to take some of the questions from the percentage chapter which you must do before your CAT exam or some other MBA exam. So we have first question, and this was last year CAT question 2023. So it is saying a very lengthy question. You can see the salary of three friends, Sita, Geeta and Neeta. I am going to teach you the smartest, or I can say the best way to solve this question. I am not going to take the long form of the solution. I am going to give you the short form. So we have three friends, Sita, then Geeta and Neeta. Now initially their salary is given in the ratio 5:6:7. So instead of 5:6:7, I can assume 50x, 60x and 70x, right? In the first year, they get salary hikes of 20%. Means the salary of Sita is increased by 20% and that of Neeta is 25% and that of Neeta is actually 20%, right? So if I want to calculate 20% of 50, this is 1 out of 5, so this is 10x actually. इसका मतलब इसका सैलरी 10x से हाइक हो जाएगा तो इट विल बी 60x एंड सिमिलरली 25% मीन्स 1/4, तो 1/4 of 60 is actually 15, so new salary would be 75x and 20% is actually 1/5, 70/5 is actually 14, तो इसकी नई सैलरी हो जाएगी 84 ऐड करने के बाद, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इन द सेकेंड ईयर, दूसरे साल, Sita and Neeta get salary hike of 40%. So Sita get another salary hike of 40% in the second year. So what is the 40%? 10% of 60 is 6. So 40% is actually 4 times of 6, that is 24. So इसमें अगर मैं 24 ऐड करता हूँ, so this would be 84x. Hopefully it is clear. Now Neeta got a salary hike of 25%. So this is 25%, right? तो 25% इज नथिंग बट 1/4, और बोले तो 4 जो है उसका बेस सैलरी था, और आई कैन से 1 out of 4. सो इट इज 1/4. बोले तो 84 का 1/4 करेंगे 21, तो 24 ऐड करेंगे बिकॉज सैलरी इज इंक्रीज्ड. सो दिस इज गोइंग टू बी 24 का इंक्रीमेंट, सॉरी 21 का इंक्रीमेंट. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 105x, राइट? नाउ the salary of Geeta become equal to the mean salary of the three friends, right? तो जो गीता की सैलरी है वो सेकेंड ईयर में मीन हो गई है. मीन बोले तो एवरेज ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, राइट? सो वॉट एवर बी द सैलरी ऑफ गीता, लेट इट बी जी. सो इट इज सेइंग जी जो है when three numbers are in AP or arithmetic progression, I can say if three numbers are there and जो बीच वाला नंबर होता है वो बेसिकली मीन होता है दोनों नंबर्स का, ठीक है? बट यहाँ पे जो दे रखा है कि यहाँ पे जो जी है वो मीन है थ्री फ्रेंड्स का, मतलब 84x प्लस जी प्लस 105x डिवाइडेड बाई 3. वाई आई हैव डिवाइडेड बाई 3? बिकॉज देर आर थ्री फ्रेंड्स एंड इट इज गिवन द एवरेज इज एक्चुअली द तीनों का जो एवरेज आएगा वो जी के इक्वलेंट आएगा. सो फ्रॉम हियर आई कैन गेट दैट इज 3g इक्वल्स टू, this is 189x plus g, so 2g is coming out to be 189x and g is coming out to be 94.5x, right? So finally I can conclude the salary of g has been now increased to 94.5x. hopefully it is clear. Now I can observe what is the salary hike in the salary of Geeta. So 94.5x minus 75x, this is 19.5 का इंक्रीमेंट मिला है उसको. तो सीता जो गीता है उसको 19.5 का सैलरी हाइक मिला है. सो परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा? सो परसेंटेज इंक्रीज इज नथिंग बट 19.5x. तो शी गॉट द सैलरी हाइक ऑन द 75 जो उसका बेस था. 75x into 100. So there is no use of x. 25/3, 25/4, this is 6.5. So this is going to be 6.5 into 4.
So 26%. So ultimately I can say the answer would be 26%. It is given in the option number A. Hopefully this question is clear, right? So this is one of the easiest way to solve this question. हालांकि मैं इसको और भी फास्ट कर सकता हूँ, मैंने इसको एक्सप्लेन करने में I have taken some time, बट जब आप इसको करोगे अपने नोटबुक में you can find it easier, right? So we have another question. Okay, so this is the election question basically. So in this question, in an election there are 4 candidates, right? So we have 4 candidates, C1, C2, C3, C4, and 80% of the registered vote casted their vote. ठीक है, तो जो भी registered candidates हैं वोट डालने के लिए जो एलिजिबल हैं उन्होंने वोट डाला 80% में, राइट? So 80%. So I can say कि यहाँ पे टोटल वोटर्स को अगर मैं काउंट करता हूँ, टोटल वोटर्स, so let them be 100x. बट वोट कास्ट कितना हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोट कास्ट? वोट कास्ट 80% of 100x. This is nothing but 80x, right? Now one of the candidate received 30% of the vote. ठीक है, तो कोई भी एक कैंडिडेट मान लेते हैं इसको मिला है 30% ऑफ कास्ट वोट. So what is the 30% of 80x? This is nothing but 24x, right? And 3 other candidates received the remaining cast vote in the ratio 1:2:3, right? इनको जो मिला है 1:2:3 में मिला है, right? That is a 1:2:3. किसका जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है, बैलेंस कितना है? 80 में से 24 तो इसके पास चले गए, तो आई कैन से 56x को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:3 में, राइट? इफ द विनर ऑफ द इलेक्शन रिसीव 2512 मोर देन द रनर अप और द सेकंड हाईएस्ट. तो आई डोंट नो कि इसमें रनर कौन है, विनर कौन है, बट ये तो बात क्लियर है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा तो इसी को मिलेगा. इन तीनों में से सबसे ज्यादा इसी को मिलेगा. व्हाई सो? बिकॉज इट इज गेटिंग 3 पार्ट ऑफ द टोटल 6 पार्ट. व्हाई कम इट इज 6 पार्ट? 1 + 2 + 3. इट इज 6 पार्ट में से 3 तो इसी को मिलेगा, मतलब 50% वोट मिलेगा इसको. तो अगर मैं C4 की बात करता हूँ, C4 इज गेटिंग 3 आउट ऑफ 6, बट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आउट ऑफ 56. सो 28x मिलेगा इसको अल्टीमेटली, राइट? तो आई कैन कंक्लूड कि ये तो विनर होगा और ये हो जाएगा आपके पास रनर अप. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, if the winner of the election received 2512 vote more than the runner up, so according to question 28x minus 24x, ये डिफरेंस आ जाएगा. दिस इज 2512, so this is going to be 4x and this is 2512. so x is actually 4 6 are 24, 4 6 are 24, and we are left with 4 8 are 4 2 are 8, 628, right? So it is asking the number of registered voter कितने थे. तो I can conclude total voter आपके पास 100x थे, so 100 into 628, so 62,800, right? So option number D इसका right answer है. We can solve another question, right? We have another question. It is one of the easiest question, but you should know the language. Language is something जो कि आपको घुमाने की कोशिश करते हैं. तो देर आर 2 आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेस आर सोल्ड इन द बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज. ठीक है, तो एक स्मॉल है, एक लार्ज है, 2 डब्बे हैं चॉकलेट के. द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस, राइट? अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँगा, लार्ज बॉक्स डबल पे बेचा जा रहा है, तो अगर मैं इसको K पे बेचता हूँ, ये 2K पे बेचा जाएगा, राइट? नाउ इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम का मतलब मान लो 100 ग्राम का डब्बा है, हाँ 100 ग्राम का पैकेट हमने पैक कर रखा है और उसमें प्राइस लगा दिया मान लो 300 रुपये का. मैं बोल रहा हूँ 300 रुपये है और आप उसमें 100 ग्राम दे रहे हो, तो रुपीज़ पर ग्राम कितना आएगा? 3 रुपीज़ पर ग्राम. आई एम सेलिंग 3 रुपीज़ पर ग्राम. होपफुली इट इज़ क्लियर. नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? The selling price per gram of the chocolate in the larger box is 12%. तो सेलिंग प्राइस पर ग्राम की मैं बात करता हूँ, राइट?
सो 12% लेसर है, तो यू शुड नो 12% का मतलब होता है कि अगर मैं इसको 100x अज्यूम करता हूँ, दिस इज 88x, 12% कम करना है इसको, 12% माइनस करना है इसका, ठीक है 88x। द परसेंटेज बाय विच द वेट निकालना है ऑफ द चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीड, कितना परसेंट आएगा। तो दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर वेट निकालता हूँ, वेट, तो यहाँ पे वेट आएगा दैट इज k अपॉन 100x। होपफुली इट इज क्लियर। आप डिवाइड करके देख लो भाई, ये भी रुपीज़ है और ये है रुपीज़ पर ग्राम। सो अल्टीमेटली ग्राम वुड बी इन द न्यूमरेटर, ग्राम जाएगा न्यूमरेटर में, रुपीज़ पर ग्राम। सो अल्टीमेटली दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्राम ऑल्सो, राइट। तो इसका मतलब ये ग्राम आ गया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2k अपॉन 88x आएगा, राइट। तो दिस इज ये आ गया। नाउ कितना ज़्यादा है लार्ज में, तो ऑफकोर्स लार्ज में ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है ये हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। नो इश्यूज इन दैट ऑल्सो, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो आई कैन से यहाँ पे इसको 25x भी लिख सकते हैं क्या, 4 से डिवाइड करके, और ये 22 हो x हो जाएगा। सो मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं सोच पाऊंगा तो आई कैन ऑल्सो राइट k अपॉन 25x, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईजी करनी है, और ये हो जाएगा k अपॉन 2k अपॉन 22x, और आई कैन से k अपॉन 11x। सो दिस इज k अपॉन 11, दिस इज k अपॉन 25। सो न्यूमरेटर इज सेम एक्चुअली, और डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स 11x वाला नंबर बड़ा है। तो परसेंटेज हमको चेक करना है कितना बड़ा है या कितना छोटा है, राइट। ओके ओके, राइट। सो कितना ज़्यादा है ये, k अपॉन 11x माइनस k अपॉन 25x। सो मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ 275x, and this is coming out to be 25 minus 11, 25x minus 11x, or even I can say in terms of k also. So this is 14k, right, upon 275x. This is the difference. तो ये कितना परसेंट है ये कैलकुलेट करना है। Of course I can solve it. So we have to solve 14k upon 275 x is what percent of the small with respect to smaller। तो स्मॉल में आपके पास k अपॉन 25x। सो नाउ इट इज इजी, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x हो जाएगा। सो 14 अपॉन 275 इंटू 25 अपॉन 1 इंटू 100% करेंगे यहाँ पे। सो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये। सो 14 आउट ऑफ 11 इंटू 100, सो 1400 अपॉन 11, तो 11 1 जा 11 बचेगा 3, 11 2 जा 22 बचेगा 8, 11 7 जा 27, राइट। सो अराउंड 127% इसका राइट आंसर। सो होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशंस, एंड फॉर मोर सच वीडियो यू कैन गो थ्रू द सिलेक्शन क्लासेस, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस तरह के और भी वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। And for more info, you can subscribe to collegedekho.com. So see you in the next video. Till then, bye. Take care.